Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Iqra Beg's Biology. This is your same tutor here, Iqra Beg. We are discussing 10th biology, chapter number 12, that is coordination and control. This is lecture number 21 of this channel. We are discussing about coordination today. So coordination is a kind of co means a relative with relations to someone, plus it can be a kind of thing which go hand in hand with some many things, means it is a chain, it cannot be performed individually. ठीक है? And coordinate means to perform some function, to perform some specified function, means this is a kind of activity in which different organs, cells or tissues combine to come together and perform a specified function. So ability to use different parts of body together smoothly and efficiently is considered as coordination, means they move in relation or go in hand in hand with each other to perform specified functions of your body. So whole of your body is well coordinated. If humans are not well coordinated, then they are not be considered as ashraful makhluqat. आप खुद हिसाब लगाएं कि आपने अपना एक बाजू, उसकी एक उंगली भी हिलानी हो, तो there is a coordination between number of tissues and muscles which help to move your single finger or your arm. So there are different types of coordination. So first type is nervous coordination and the second type is chemical coordination. In nervous coordination, nervous system is associated. So it means there are a number of nerves which coordinate this system with the help of your specified organ, brain and spinal cord. Further, second one is chemical coordination. In chemical coordination, endocrine system is involved. Endocrine system is that system which release some kind of hormones with the help of specified tissues or specified organs in your body. Here I will quote an example. If you consider the function of pancreas, pancreas has some kind of specified release of insulin hormone. If insulin do not release properly through pancreas in your bloodstream, then people get diabetes. So it means that small drops of chemicals which are released from this endocrine system, which is composed of different endocrine organs, is very important for your proper functioning of the body. Further, if we move in your chapter, it involves coordinated action. There are different components which are present in a coordinated action, which are necessary to perform any coordinated action, which are necessary to perform such kind of action which is performed by different specified organs, tissues or cells of your body. First of all, there is a need of stimulus. What is that stimulus? We will further discuss it. Then there is need of receptor, then coordinator, then from coordinator we move towards effector, and from effector at the last response is produced in the answer of that stimulus. Means this whole cycle, these all steps go hand in hand to get this response which is the result of this stimulus. So what is stimuli? Stimuli, if you consider कि आपको अचानक टच करता है तो यू विड्रॉ योर हैंड, या आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे चाय का कप है, इफ़ इट इज़ मच मोर hotter than your expectation, you will withdraw your hand very quickly. आप बड़ी तेज़ी से अपना हाथ उससे दूर करेंगे. तो this is the stimulus of touch. वो सारा फंक्शन, मतलब आपको स्टिमुलस मिला कि ये गर्म है, वहाँ पे रिसेप्टर्स थे जिन्होंने ये बात जो है रिसीव की, फिर कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेटर्स इफेक्टर्स के पास ले गए और इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स पैदा किया इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई कि यहाँ से हाथ हटाना है. ठीक है, तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ कि आपने वहाँ से हाथ
पीछे कर लिया है। तो स्टिमुलाई टच भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है। लाइट कैसे हो सकती है, आपने देखा होगा कि सनफ्लावर जो है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करता है। जैसे जैसे सूरज जिधर जिधर मूव करता है वो सारा दिन अपनी जो है फेस उसकी तरफ लेके चलता है, ये भी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का एक्शन है। स्टिमुलाई क्या होता है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट व्हिच कैन प्रोवोक रिस्पांस इन एन ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई रिस्पांस पैदा कर सके, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये हीट भी हो सकती है, ये कोल्ड भी हो सकता है, ये प्रेशर भी हो सकता है, साउंड वेव्स भी हो सकती हैं, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स भी हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम आजकल की बात करें तो कोविड-19 की सिचुएशन है, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। इन्वायरमेंट में एक ऐसा चेंज आया है कि आप थ्रू ब्रीदिंग एक ऐसे वायरस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं जो आपने सीवियर जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स का कर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में सम प्रोटेक्टिव मेजर्स, एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपना रहे हैं कि आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसकी वजह से आपके लंग्स को कोई इशू ना हो जाए। आप मुकम्मल तौर पे क्वारंटाइन है अपने हाउसेज में, आप बाहर जाना अवॉइड करें। ये सब क्या है, दिस इज योर रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट स्टिमुलाई व्हिच इज अ वायरस इन योर एनवायरनमेंट। हीट, अब आप बाहर गर्मी होती है तो आप बाहर नहीं जाते, ये भी एक रिस्पॉन्स है। वो सारे कोऑर्डिनेटर्स ने मिलकर आपके दिमाग को ये बात समझाई है कि वहां नहीं जाना जहाँ पे टेम्परेचर आपकी बॉडी से बढ़ जाता है। ठीक, ठंड के बारे में भी ये बताता है। प्रेशर, अगर आपके हाथ पाँव या किसी भी बॉडी के पोर्शन के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो वो भी आपको फौरी तौर पर पता चलता है। साउंड वेव, मतलब बहुत हाई लेवल साउंड प्रोड्यूस होती है तो आप क्या करते हैं, फौरी कानों में उंगलियां देते हैं, तो ये भी आपका एक रिस्पॉन्स है। या आपकी अम्मी आपको आवाज लगाती है तो आप आगे से फौरी जी बोलते हैं, ये भी एक आपका रिस्पॉन्स है टुवर्ड द साउंड वेव्स के आपके कान में उस स्टिमुलस को लिया, रिसेप्टर्स ने रिसेप्ट किया, कोऑर्डिनेट किया, ब्रेन ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया और एक रिस्पॉन्स पैदा हो गया इन पीरियड ऑफ नैनो सेकेंड्स के आपने जुबान से जी बोला। अब आप एक चीज बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का वो हाल है कि करे कोई और भरे कोई, मतलब करेगा कोई और ऑर्गन और इसका रिस्पॉन्स कहीं और से आएगा। ठीक है जी। उसके बाद रिसेप्टर्स पे आ जाते हैं, सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। ये डिटेक्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी के थ्रू। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स ईयर्स के थ्रू डिटेक्ट होती हैं, फिर लाइट आईज के थ्रू डिटेक्ट होती है। एकदम बड़ी तेज सी रोशनी आपकी आंखों में पड़े तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर आई टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक लाइट। हमारी आईज की एक लाइट कैपेसिटी है, उससे ऊपर जब लाइट जाती है तो हमारी आंखें उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक, और अगर उससे कम अंधेरा हो जाता है तब ये में कुछ दिखाई नहीं देता। दिस इज द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट स्टिमुलाई। और क्या होता है कि जब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो आफ्टर सम टाइम आपको ऐसे फील होने लग जाता है कि यू गेट यूज्ड टू दैट डार्कनेस, और आपको ऐसा लगता है जैसे मैं चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ अपने इर्द गिर्द। तो क्या होता है, उस वक्त जो देखने की सलाहियत है वो डाउन ट्रोटल होती है और जो महसूस करने की जो आपकी सेंसिटिविटी लेवल है वो बढ़ जाता है टुवर्ड्स योर इन्वायरमेंट। इसी तरह अगर आपकी हवा में कोई केमिकल्स हैं तो आपका नोज फौरी तौर पे इसको बताएगा कि इज इट अ फ्रेग्रेंस, ये कोई खुशबू है, और इज इट अ काइंड ऑफ एनी स्मेल, या कोई बदबू है, या कोई केमिकल है, या कोई अच्छी चीज़ है, या कोई खाने की चीज़ है। किचन में मम्मा कुछ भी बना रही होती है तो आपको सेंस ऑफ स्मेल आती है। आपके जो साइनसेस हैं आपके नोज के अंदर, वो एक जो है रिसेप्शन प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिस्पॉन्स का बायस बनती हैं, और ये भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन का हिस्सा होते हैं। तो उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज कोऑर्डिनेटर्स। दीज आर द ऑर्गन्स व्हिच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं रिसेप्टर से और मैसेजेस को सेंड करते हैं वापस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास ताकि वो कोई रिस्पॉन्स यानी एक्शन प्रोड्यूस कर सके। मतलब इन्होंने क्या किया, स्टिमुलस से रिसेप्टर के पास आया, रिसेप्टर से जो है इन्होंने
इंफॉर्मेशन ली और उस इंफॉर्मेशन के मैसेज को टाइप किया, उस टाइप्ड मैसेज को ऑर्गन्स के पास भेज दिया कि जी जनाब इसका एक्शन बनाए। मतलब अगर आपने कोई साउंड सुनी है तो क्या होता है, स्टिमुलस आया साउंड का, आपके ईयर के अंदर रिसेप्टर्स ने उसको कबूल किया और फिर कोऑर्डिनेटर के पास चला गया। कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, उस मैसेज को उस ऑर्गन के पास भेजा जिसने उसका रिस्पॉन्स बनाना है। जैसे कि ब्रेन आपका जो है उसकी तरफ रिस्पॉन्स करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो कोऑर्डिनेटर का ये काम होता है। जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर हैं। और जो हार्मोन्स हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के, मतलब हार्मोनल सिस्टम के। और इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स के पोर्शंस भी होते हैं, जैसे नेफ्रॉन्स जो कि किडनी का पोर्शन है, इनके थ्रू भी कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन वगैरह, वो हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बोन्स और लिवर भी एज एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते हैं। सो मैंने पाइपलाइन में से 3 कंपोनेंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं। दीज आर स्टिमुलस, मींस आपकी इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है। अगर आपकी इन्वायरमेंट में एकदम से इफ आई से एज एन एग्जांपल, इफ इट कम्स फॉर एन अर्थक्वेक, अगर कोई ज़लज़ला आ जाता है तो इट्स अ चेंज इन योर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स प्रोवोक होगा। वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि आपके रिसेप्टर्स फौरी तौर पे, जो आपके स्किन रिसेप्टर्स हैं, फौरी तौर पे उस प्रेशर को आपके बॉडी के ऊपर महसूस करेंगे जो वो अर्थक्वेक आपकी बॉडी के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स तक पैगाम पहुंचाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स क्या करेंगे, उस मैसेज को रिसीव करके फर्दर उन ऑर्गन्स में भेज देंगे जहां पर इफेक्टर्स प्रेजेंट है। और वो इफेक्टर्स क्या करेंगे, आपके ब्रेन को एक रिस्पॉन्स देंगे। वो रिस्पॉन्स वापस आएगा आप तक और आपको पता चलेगा अच्छा अर्थक्वेक आ गया, मुझे अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है, मुझे यहाँ से बिल्डिंग एरिया से बाहर जाना है। ठीक है, ये सारा यहाँ जैसे मैंने आपको जो है कोविड-19 सिचुएशन की एक एग्जांपल दी है कि वो भी एक आपका स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वायरस कि हमने उसके अगेंस्ट ऐसे एफओपीज लेने हैं। अगर तो उसकी वैक्सीन प्रेजेंट होती या वैक्सीन अब तक बन गई होती तो एसओपीज, सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटाइन तक बात जानी नहीं थी। लेकिन इट इज अ बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन community, and it is the biggest challenge for all the scientists and researchers which are working right now, because जो कोविड-19 है ये इतनी तेजी से म्यूटेट कर रहा है, ये अपनी प्रोटीन्स को इतनी तेजी से चेंज कर रहा है क्योंकि इट इज आरएनए वायरस। तो बहुत मुश्किल हो गया उसके ऊपर फर्दर जो है रिसर्च परफॉर्म करना कि ये इसके अंदर कौन से कोऑर्डिनेटेड ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको अगर हम जिनकी चेन को हम ब्रेक करें तो इसका जो इफेक्टिविटी है टुवर्ड्स द ह्यूमन होस्ट वो कम हो सके या खत्म हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द स्मॉल tidbits of information which I share with you in every lecture because I belong to that specified branch of biology which is concerned about all these things of viral or microbial genetics. So thank you so much. This is all about your today's lecture. Kindly remember us in your prayers. Stay home, stay safe. Kindly share this information with your friends and fellows, and thank you so much. Allah Hafiz.